So in this lecture, we are going to cover December 2016 attempt financial management paper past year practical questions. और जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, this is again from the topic leverage. और यहाँ वो बता रहा है that ABC Limited has an average selling price of 10 per unit, variable cost 7 दिया हुआ है, fixed cost है 1,70,000. Then it finances all the assets by equity fund. This means there is no interest cost and it pays 30% of the tax on its income. Same way you have been given information for another company, that's PQR Limited, जिसमें बताया है that it is identical to ABC Limited except that in respect of the pattern of financing. So everything, selling price, variable cost, fixed cost, everything is going to remain same, but they have 50% equity and 50% debt, और इनका interest amount आता है 20,000. So degree of operating leverage is going to remain same, but degree of financial leverage will change here. और यहाँ पे वो आपको बता रहे फाइंड आउट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज at 7 lakh rupees sales, and thereafter they say that for both the companies and then interpret the result. तो यहाँ पर आपको क्विकली दो लाइन आपको और मेंटेन करके यहाँ पे लिखना होगा व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स. तो यहाँ पर आप जब भी लीवरेज का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक the income statement. Now, since we know that selling price is 10 and we know that the variable cost is 7, this means the contribution is 3 rupees per unit, right? Yes. So we can say that contribution is 30% of the sales. हाँ. अच्छा, अगर 30% ऑफ द सेल्स है, 7 लाख आपको सेल्स दिया हुआ है, तो स्ट्रेट अवे आप वहां पे कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. Why we are doing it this way? Because we don't have to find out the number of units here. यहाँ हमें उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, because we just have to calculate the degree of operating leverage, degree of financial leverage and degree of combined leverage. खाली ये तीन आपको find out करना है. So we don't have to get into number of units. Income statement बनाने को देता तो हम फिर यहाँ पर पहले number of units find out करते and then we would have solved the entire question. So number of units find out करना भी difficult नहीं होगा, because we know selling price per unit is 10 and 70,000 is sales. So with this we can get 7 that lakh. 7 lakh is the sales. So 70,000 units is the units which is being sold. So accordingly आप calculate कर सकते हो. So let's make it for PQR Limited and we have for ABC Limited. So this is all particulars. So we know what is the sales. Sales for both the company is same. This is 7 7. lakhs and this is 7 lakhs. Now, if you want, you can make minus variable cost or something. I will straight away make contribution, which is at the rate 30%. So 7 3 2 lakh 10,000 and here also contribution 2 lakh 10,000. Then we have fixed cost, और fixed cost हमारे पास 1 lakh 70. 70,000 है. So this would be 1 lakh 70,000 and this is going to be 1 lakh 70,000. So ये यहाँ पर deduct हो गया. So we have EBIT और 40. EBIT यहाँ पर 40,000. दोनों कंपनीज का EBIT is 40,000 here. अब इंटरेस्ट अगर आप कॉस्ट देखोगे तो इंटरेस्ट ABC में तो इंटरेस्ट नहीं है, PQR में 0. हाँ, तो यहाँ 20,000 का. 20,000. हाँ, so here interest is 0 and here it is 20,000. So we get earnings before tax and earnings before tax is 40,000 and here it is 20,000. तो ये पार्ट अपने पास आ गया. अब हमें जो कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, ये हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो गिव इट दिस वे नंबरिंग that this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 and this is 6. So this again becomes part of our table only. तो अब अगर आप में कैलकुलेट करना है तो हम यहीं पर नीचे कर सकते हैं. सो व्हाट यू कैन डू इट इन द एग्जाम, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, बट अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, just below this table you can write point number 7, that degree of operating leverage, और वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, it is contribution by EBIT. You can write it here, contribution upon
EBIT, और यहीं पर आप ब्रैकेट में लिख दो कंट्रीब्यूशन इज इन वर्किंग नोट नंबर 2 एंड EBIT इज इन वर्किंग नोट नंबर 4। तो ये आपका सॉल्व हो गया। सो 2,10,000 divided by 40,000. 5.25. So this is 5.25. For both the companies, it is going to be 5.25. So you can do it this way, right? Same way, अब हम यहाँ पर फिर से कैलकुलेट करते हैं। ये एक टेबल मैं फिर से बना देता हूँ, ABC and PQR. So we will have point number 8, which is going to be degree of financial leverage, which is going to be EBIT upon EBT, और ये हमारे पास आ गया 4/6. So this is going to be 4 and this is by 6, 4/6. तो आप ये देखिए यहाँ पे 40 40. So your the degree of financial leverage is 1 and here the degree of financial leverage is 2, right? और यहीं पे आप 9th degree of combined leverage आप लेना चाहते हो तो you can also write it this way, 7 into 8. इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो भी आंसर आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 5.25 और ये आपका हो जाएगा 10.5। मेक सेंस? Yeah. तो इस तरह से करके आप आंसर लिख लो, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि देखो यहाँ पर आपको टैक्स रेट गिवन है, 30% टैक्स रेट गिवन है, दो इट इज नॉट नीडेड because you have to calculate DOL, DFL and DCL. This you have already calculated. So it's not needed that you calculate beyond EBT. But since to be on the safe side, you can do this calculation also, that EBT minus tax and then you write EAT. So that can again help you to be staying on the same side. That's it. और कोई अपना प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं, वैसे नीड नहीं है तो टाइम अगर नहीं हो तो आप इग्नोर करके आगे निकल सकते हैं। एनीवे इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। सो 3 कैलकुलेशंस आपने ऑलरेडी कर लिया, अब आपको बस खाली यहाँ पर इंटरप्रेट करना है। तो अब आप इंटरप्रेट में मुझे बताओ क्या करोगे, that even though the operating leverage is same for both the company, but the finance risk in PQR Limited is higher Higher. than ABC Limited, which makes the overall risk double, है कि नहीं? So यहाँ पर ये आपका कंक्लूजन बन जाएगा यहाँ पे, राइट? इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो that degree of combined leverage का EPS के साथ कनेक्शन होता है कि नहीं? So every 1% change in sales, remember, will result in 5.25% change in the EPS. आपको याद है हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का दो फॉर्मूला है, एक है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT and then there is another formula that it is change in हाँ, EBIT, वो वाला फॉर्मूला। ऑपरेटिंग का ना। हाँ, हाँ, ऑपरेटिंग के लिए चेंज इन EBIT अपॉन चेंज इन सेल्स। हाँ, चेंज इन सेल्स, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। सो इसी तरह से अगर आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का लोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी EBIT अपॉन EBT. EBT and this will be change in EPS अपॉन चेंज इन EBIT। EBT. और अगर आप डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज देखोगे, सो हाउ वी राइट कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, you can also write it this way, Change in EPS by हाँ, change in change in sales. EPS upon change in sales, change in sales. So you can also interpret based on this, you can write that for every 1% change in sales, the EPS of ABC Limited will change by 5.25% and this is going to change by 10.50%, and out of these two this has got more risk, इन इसमें आपका रिस्क ज्यादा है। सो दैट्स व्हाट यू कैन राइट द आंसर हियर। आप बताइए, इज दिस क्लियर? Yeah. सो ये एक आपका इजी क्वेश्चन था। देन वी हैव दिस अनदर क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। A very very easy question. Inventory management में यहाँ पे बताया that product Y is sold for ₹20 per unit and the demand for the product is a constant at the rate 2000 units per month. Okay, and then the cost price per unit is 10. Ordering cost is 1.20 per order and the annual carrying cost is 10%. So calculate the economic order quantity and the number of orders which is needed. So economic order quantity के हिसाब से अगर आपको फॉर्मूला हम देखें तो ये क्या हो जाता है,
टू टू एवरी इंटू, वैसे हाँ बेसिकली एनुअल कंजम्पशन आपका जो रहेगा, देन योर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड देन कैरिंग कैरिंग कॉस्ट कॉस्ट, करेक्ट. सो आप यहाँ पे देखिए, there is just one catch in this question. They have given you 2000 units per month. So 2000 units per month है. 24,000 हाँ, तो बस आपको ये ध्यान रखना है. If 2000 units is per month, this would imply 24,000 per annum. तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप 24,000 के हिसाब से करोगे. So this is going to be 2 into 240 24,000 into your ordering cost is 1.20 and your carrying cost is 1 10% per annum. तो 10% of 1 rupee is 1. ठीक है. So this is 10% of 10. तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा EOQ कितना आ जाता है यहाँ पे, 240 240. ओके, तो दिस इज 2 इंटू 24,000 इंटू 1.2 और उसको रूट कर दो तो ये आ गया 240 यूनिट्स. सो ये एक ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गया. अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स वुड बी नीडेड पर ईयर. तो आप ये देखो, आपका पर एनम नीड कितना है. सो पर एनम कंजम्पशन इज 2000 पर मंथ 24,000 इंटू per 12, annum हाँ राइट. तो ये आपका 24,000 आ गया. और आप एक बार में, सो दिस इज, 240 हाँ, ऑर्डर साइज वुड बी 240. इसको आप अगर 240 कर देते हो तो 100 this becomes 100. This is 100 orders per annum. So ये एक आपका easy, एक और easy सा question आ गया. Now then we have this another question and interest rate parity वाला question हो गया. This says that the rate of inflation, हाँ ये purchasing power parity theory, the rate of inflation of USA is likely to be 3% per annum in India and it is likely to be 6.5%. I mean, this is in US, it is going to be 3%, and in India, it is going to be 6.5%. So, quick एक concept, मतलब not related to this. आप मुझे बताओ, जो फॉरवर्ड रेट होगा आपका, ठीक है, जो फ्यूचर में रेट गिरेगा, वो कौन सा करेंसी डिस्काउंट में जाएगा, रुपी या डॉलर. जब हमने ये परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी पढ़ा था, डिस्काउंट में रुपी जाएगा रुपी जाएगा. क्यों? बिकॉज इंडिया का इन्फ्लेशन ज़्यादा है. हाँ ज्यादा ठीक है, है तो जिस भी करेंसी का इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा वो करेंसी फ्यूचर में डिस्काउंट में चला जाता है. डिस्काउंट में जाएगा ठीक है. सो आप यहाँ पे देखो, आपको इधर दिया हुआ है द स्पॉट रेट इज दिस, और आपको फाइंड आउट करने को वो बोल रहा है एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट आफ्टर 1 ईयर एंड आफ्टर 3 ईयर. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पता है दैट अभी जो करेंसी दिया हुआ है वो क्या है, इट इज $1 इक्वल टू रुपीज 68.40. Correct. So this is the left hand side currency and this is the right hand side currency. तो हमारा जो फॉरवर्ड रेट और फ्यूचर रेट, उसमें फॉर्मूला क्या था, इट वाज फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट, है कि नहीं, 1 इक्वल plus टू right hand side 1 currency प्लस राइट हैंड साइड करेंसी. करेक्ट. to the power n So this is 1 plus right hand side currency inflation to the power n upon 1 plus left hand side currency इन्फ्लेशन टू द पावर n. और इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करेंगे. तो आप ये देखो, आपका फॉरवर्ड रेट हमें फाइंड आउट करना है आफ्टर 1 ईयर. सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट इट आफ्टर 1 ईयर, इट इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड रेट अपॉन स्पॉट रेट हमारे पास है 68.4, 68.4, और ये आ गया आपके पास इन्फ्लेशन तो 6.5. सो दिस इज 1 पॉइंट या 1 प्लस 0.065 और ये हो जाएगा 1 प्लस 0.03. And once we do the cross multiplication, we get it. So this implies forward rate is equal to 68.40 into 1.065 divided by 1.03. So what is going to be the 1 year forward rate? 70.72 70.72. So we'll write it in little
क्लियर मैनर, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फॉरवर्ड रेट में $1 इक्वल टू रुपीज, गया है कितना, 70, 70.72. 70.72। Problem, sir. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास आ जाएगा व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉरवर्ड रेट आफ्टर 3 इयर्स। सो ये कैलकुलेशन अपना सेम ही रहने वाला है जैसे यहाँ पर था, बस टू द पावर 3 हो जाएगा। तो आई जस्ट डू इट हियर ओनली, यहीं पर हम क्यूब कर देते हैं, तो ये वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स आ जाएगा, राइट। सो दिस विल बी वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। तो दिस बिकम्स 68.40 इंटू 1.065 इंटू, आप 3 बार इक्वल टू करोगे तो आंसर आ जाएगा विच इज 1.2079, करेक्ट। आप चाहो तो डेसिमल के आगे भी ले सकते हो या फिर आप कैलकुलेटर में भी स्ट्रेट अवे सॉल्व कर सकते हो। एंड दिस इज 1.03 इंटू इक्वल टू 3 बार अगर आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा दिस इज गोइंग टू बी 1.0922727, राइट। सो 68.4 इंटू 1.20794 डिवाइडेड बाय 1.092727, सो ये आ जाता है 75। सो 3 मंथ फॉरवर्ड रेट जो आपके लिए होगा वो हो जाएगा $1 इक्वल टू 75.61 रुपीज। आप बताइए, डज दिस मेक सेंस? हाँ सर, एक साथ क्यूब भी तो कर सकते हैं, सेम ही आया मेरा भी। हाँ बिल्कुल 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 सेम ही आएगा आंसर। थोड़ा सा डिफरेंस है, 59, 75.59। इट्स फाइन, कोई तकलीफ नहीं है। वो डेसिमल्स में मैंने बताया ना, अगर यहाँ पर हम भी डेसिमल्स कम लेंगे तो वैल्यू अकॉर्डिंगली, बट ठीक है, दिस इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। बट ये ध्यान रखना कि जब फॉरेक्स में आप कैलकुलेशन करो और करेंसी रेट्स और को लो ना, तो डेसिमल के बाद ट्राई टू कीप इट फॉर एटलीस्ट 4 to 5 डिजिट्स आप लो, तो आपका उतना प्रिसाइज आंसर आएगा। एंड सिंस दिस इज नॉट अ टू वे कोट, टू वे कोट होता है तो अपने को और ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। बट सिंस दिस इज अ वन वे कोट, देयर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट दिस वे, चलेगा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, राइट। Yeah. Okay, so let's go ahead and look for the next question, and we have this. अब ये question I don't know institute क्यों बार बार पूछता है, this has been asked a lot of time, और simple सा question है ये आपका। आप इसमें देखो, आपको वो बता रहा है expected return, so your expected return is 22% for security A and for security B is 17। बीटा फैक्टर आपको दोनों का दिया हुआ है और आपको बता रहा है assume risk free return 10% and return market 18%। So find out whether security A and B they are correctly priced or not। So ये पता करने के लिए रिस्क फ्री रिटर्न है, रिटर्न मार्केट है, बीटा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग Captain. टू कंपेयर, एग्जैक्टली, सो वी आर गोइंग टू कंपेयर द एक्सपेक्टेड रिटर्न वर्सेस द कैपेम रिटर्न, करेक्ट। और इसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है या सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है, करेक्ट। हाँ. तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी ए के लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैपेम का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, सो कैपेम फॉर्मूला इज रिस्क फ्री रिटर्न, राइट, प्लस बीटा इंटू रिटर्न मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, राइट। सो अब अगर आप यहाँ पे देखो, ए रिस्क फ्री रिटर्न इज 10% plus the beta is 1.5. 1.5 and this is 8%। 18 माइनस 10, तो मैंने स्ट्रेट अवे यहाँ पर 8% लेके सॉल्व कर दिया, तो ये आ जाता है आपके पास कितना, 22%. ये आ गया एग्जैक्टली आपके पास 22%। तो 22% दिस मीन्स Correctly priced. करेक्टली प्राइस्ड, सो यहाँ पर आप बोलोगे सिक्योरिटी ए इज करेक्टली प्राइस्ड। And why it is correctly priced? Because the expected return is equal to the CAPM return, correct। Now we will calculate it for security B। सिक्योरिटी बी में आप देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी 10% प्लस इसका बीटा फैक्टर है 0.7. 0.7, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.7
into 8. So this makes it 15 point. 15.6, right? Now 15.6% versus the expected return of 17. तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? ये सिक्योरिटी क्या है? Undervalued. This security is undervalued because the CAPM return is less and the expected return, ये आपका आ गया. So here we are going to say the security is undervalued, right? That's it. तो यहाँ पर आपको ये तो पूछा है नहीं कि बाय या सेल, तो अंडर वैल्यूड है तो ये सिक्योरिटी को आप बाय करते हो फिर, Buy. करेक्ट? ओके, देन लेट्स गो हेड. ये अपने पास है. दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन यहाँ पे. सो इधर आपको फाइंड आउट करने को बोल रहा है. फाइंड द करंट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी, और द करंट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इज 60. सॉरी, यहाँ पर प्राइस आपको गिवन है, डिविडेंड भी आपको दे दिया 4 रुपीज, कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज के आपको गिवन है, एंड इट इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द ग्रोथ रेट. तो यहाँ पर अपने को सिंपल कैलकुलेट करना है दैट दे हैव बीन गिवन P0 आपको गिवन है, इट इज 60. नाउ टेल मी दिस इज D0 और दिस इज D1. Current price and dividend per share is D0. D0 क्योंकि करंट आपको अभी बता रहा है, ये प्रेजेंट आपको बता रहा है, तो यू हैव बीन गिवन D0 इज 4, राइट? एंड दे हैव आल्सो गिवन यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इज 12%, और आपको यहाँ पर ग्रोथ कैलकुलेट करने को बोल रहा है. So we know we can calculate this like using the Gordon model. P0 is equal to D0 1 plus G upon K KE minus minus G. So इससे अपन calculate कर लेंगे. So this becomes 60. D0 is 4 and this becomes 1 plus G. KE आपके पास है 12 minus G, right? So अब इसको अपने को पूरा solve करना है. So when we solve this, 4 इधर ले जाते हैं, 4 इधर आ जाएगा और ये इधर, I mean this will come here and this will go here, correct? So this becomes 60 divided by 4 into, this is 0.12 minus G. So what is left is only 1 plus G. So ये हो गया 15. अगर इसको हम सॉल्व करें तो दिस becomes 15, और 15 into 0.12, 15 into 0.12, so this becomes 1.8, and this becomes 15G, and this is 1 plus G. फिर इसको इधर ले जाते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, right? I mean this will come here and this will go here, so this becomes 15G. 1.8 minus 1, and this becomes 15G plus G, right? हाँ. Which implies 0.8 is equal to 16G. 16G. So G is equal to 105. 0.8, and this is your 16. 16. So ये कितना आ गया? 0.8 0.05. divided by 16. So this is 0.05, or you can say 5%. ये आपका आंसर आ गया, राइट? अब देखो ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछ रहा है वो, राइट? यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चंस को 4 मार्क के लिए पूछ रहा है. अब देखिए ये एक और क्वेश्चन आ गया फॉरेक्स अपने डेरिवेटिव से, और डेरिवेटिव्स में कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें स्ट्रैडल ऑप्शन था. यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेइंग स्ट्रैडल ऑप्शन, दे आर सेइंग दैट राधा बॉट अ 3-month कॉल ऑप्शन on A Limited with an exercise price of 50 and a premium of rupees 4, and she also bought a put option on the same share with an exercise price of 40 and a premium of 1.5, and the current market price is 45. So what will be the Radha's position after 3 months if the share price turns out to 50 or the share price turns out to 30? तो ये अपने को कैलकुलेट करना है. तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं. वी नो शी हैज अ कॉल ऑप्शन, तो ये हो गया आपके लिए लॉन्ग कॉल. तो लॉन्ग कॉल ऑप्शन अगर आप लो तो यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज प्राइस है 50, और आपके पास ऑप्शन प्रीमियम, ये आपके पास ऑप्शन प्रीमियम जो है
ये ऑप्शन प्रीमियम आपने यहाँ पर दिया है 4 रुपीज। एंड सेम वे पुट ऑप्शन के लिए अगर आप लो तो आपका एक्सरसाइज प्राइस है यहाँ पर 40 एंड फॉर दिस ऑप्शन प्रीमियम जो आपने यहाँ पर पे किया है दिस इज 1.50। अब अगर मार्केट प्राइस 50 होता है तो क्या पे ऑफ होगा? सो इफ द मार्केट प्राइस बिकम्स 50 तो कॉल पोजीशन के लिए हम देखते हैं। तो कॉल पोजीशन में क्योंकि लॉन्ग कॉल है तो वी विल सी एक्स सॉरी एस माइनस एक्स s minus x तो s is 50 by the way this is s और एक्सरसाइज प्राइस जो इसका है वो भी कितना है 50 सो दिस इज 0 बट स्टिल ऑप्शन प्रीमियम 4 रुपीज इनको पे करना पड़ेगा तो ये 4 रुपीज का लॉस। एंड अगर आप पुट ऑप्शन के लिए देखोगे पुट में इनका पोजीशन वुड बी x माइनस s तो एक्सरसाइज प्राइस इज 40 एंड स्पॉट प्राइस इज 50 तो ये हो गया -10। दिस मीन्स ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड है कि नहीं? हाँ। This will not be exercised, and since this is not exercised but still the option premium will have to be paid, so 0 minus 1.50 तो यहाँ पर 1.5 का loss तो total is 5.50 का loss. This is going to be the loss. बताइए, is this clear? हाँ सर, प्रेजेंटेशन के लिए भी मार्क्स होता है ना, जैसे मेरा आंसर करेक्ट है, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा हिसाब से खराब। नहीं मैं खुद बोलूंगा मेरा प्रेजेंटेशन पे कोई बहुत ग्रेट नहीं है बट यस व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन इट दिस वे सो व्हाट यू कैन डू आप या चलो मैं आपको जो नेक्स्ट वाला बताता हूँ मैं वो एग्जाम प्रेजेंटेशन के हिसाब से बता देता हूँ दैट इफ मार्केट प्राइस दैट इज एस बिकम्स 30 रुपीज तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख दो पोजिशन अंडर कॉल ऑप्शन सो यू कैन राइट इट दिस वे पोजिशन अंडर कॉल ऑप्शन we know we will have to check s minus x ये जरूर लिखना आप वहां पे हाँ। तो आप यहाँ पे देखो what is s s is 30 and what is x x is 50 तो ये आ गया आपके पास -20 ठीक है तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे इस तरह से ऐसा लिख दो since the value of option is negative it will not be exercised okay it will not be exercised however option premium would be paid option premium of rupees 4 has to be paid एक लाइन ड्रॉ कर देना और यहां पर लिखना therefore net payoff under call option is minus 4 rupees बताइए मेक सेंस हाँ। तो ये आपने कॉल ऑप्शन के लिए लिख दिया सेम पे आप पुट ऑप्शन के लिए भी ऐसे ही कैलकुलेट कर दो राइट सो फॉर पुट ऑप्शन अपने को पता है x माइनस s so what is x x is 40 s is 30 तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसको गेन ये एरिया हमने यहाँ पर 10 ये आपका 10 आ गया 10 रुपीज का आपको यहाँ पर गेन हो गया लेस द ऑप्शन प्रीमियम और आपका ऑप्शन प्रीमियम है 1.5 1.50 तो आप यहाँ पे बोलोगे द नेट गेन इज 8.5 अब यहीं पर पॉइंट नंबर सी कर दो सो टोटल गेन लॉस ये आप ऐसे कर दोगे कि कॉल ऑप्शन में it is -4 and put option में it is +8.5 और ये आ गया आपका नेट पोजीशन which is
4.5। मेक सेंस? हाँ। तो ये एग्जाम प्रेजेंटेशन हो गया आपका। अब इसी को मैंने शॉर्ट में ऐसे कर दिया। तो आपके पास टाइम नहीं हो तो आप ऐसे सॉल्व करके निकल जाओ, और टाइम है तो प्रॉपरली यू कैन राइट दीज सेंटेंसेस। हाउएवर दिस वुड बी प्रेफरेबल। आप ये लिखोगे, बेस्ट प्रेजेंटेशन आपके लिए ये रहेगा। ओके, या ऑल राइट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अगेन फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और इसमें आप देखो यहाँ बता रहा है द क्रेडिट सेल्स ऑफ अ फर्म इज 6,40,000 और इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 15%। करंट रेशो दे दिया 2.5। आगे बता रहा है फर्म का जो करंट लाइबिलिटी वो है 96,000, इन्वेंट्रीज है 48,000 और कैश इसके पास है 16,000। नाउ डिटरमाइन द एवरेज इन्वेंट्री टू बी कैरिड बाय द फर्म इफ द inventory turnover is expected to be 5 times, right? और assume 360 days in a year। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है inventory turnover ratio। So what is the inventory turnover ratio? Inventory turnover ratio is your cost of गुड्स goods और sold divided by एवरेज इन्वेंटरी। average inventory। तो अगर हमारे पास cost of goods sold आ जाए, ITR आपको 5 दिया हुआ ही है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5, करेक्ट। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप कैसे निकालोगे? तो हमें पता है COGS इज ऑल्सो इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, है कि नहीं? हाँ, 85% ऑफ हाँ, सेल। तो यहाँ पर अपने को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है तो हम ऐसे कर देंगे सेल्स इंटू 1 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो दिस बिकम्स 6,40,000 जो कि यहाँ पर हमारा सेल्स है और इसका 85%, राइट, डिवाइडेड बाय ये हो गया अपने लिए एवरेज इन्वेंटरी, करेक्ट। और ये हुआ एवरेज इन्वेंटरीज 640 का 85%, सो दिस बिकम्स और 5,44,000 हाँ, डिवाइडेड बाय 5। 1,08,800। दिस इज 1,08,800। तो ये आ गया आंसर, एवरेज इन्वेंट्री। तो फर्स्ट पार्ट अपना यहाँ पर सॉल्व हो गया। सेकंड वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जब भी देखो डेटर्स। इस, हाँ, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले ना, आई वुड ऑलवेज से दैट प्लीज राइट द फॉर्मूला। क्योंकि जब आप क्या होता है फॉर्मूला लिख देते हो तो यू गेट अ क्लियर आइडिया क्या इंफॉर्मेशन है और क्या इंफॉर्मेशन हमें निकालना, मतलब क्या इंफॉर्मेशन हमारे को गिवन है और क्या इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर अलग से कैलकुलेट करना है। सो योर average collection period is, what is the formula for average collection period? That is by credit sales. So this is your average debtors divided by the total credit sales into जो भी हमारे पास है, क्योंकि Days. क्योंकि हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमें 360 डेज यहाँ पर बोल रहा है तो हम यहाँ पर 360 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज अगर मंथ्स में कैलकुलेट होगा तो वो 12 एंड ऑल दोस थिंग्स विल गेट हियर। सो वी हैव टू कैलकुलेट एसीपी। तो एसीपी के लिए हमें चाहिए टोटल क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज डेटर्स, ठीक है। या आपका जो भी यहाँ पर क्लोजिंग डेटर्स जो भी आपका रहेगा उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखो यहाँ आपके पास क्रेडिट सेल्स गिवन है 640, है कि नहीं? This is given in the question. What we don't know is the average debtors और we need to find out the debtors, ठीक है। तो अब debtors अगर आप यहाँ पर लोगे तो हम कैसे फाइंड आउट करें debtors के लिए? तो debtors के इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने यहाँ पर एक आपको करंट रेशो दे दिया है। करंट रेशियो से करंट एसेट्स निकल जाएगा। करंट रेशो दिया हुआ है, फॉर्म का करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है, इन्वेंट्री है, कैश है। सो अज्यूमिंग दैट करंट एसेट्स हैव गॉट ओनली थ्री थिंग्स, वन इज कैश, देन योर इन्वेंट्रीज डेटर्स। एंड डेटर्स। तो जो बैलेंस हमारे पास बचेगा वो डेटर्स आ जाएगा यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पर करंट रेशियो आपको गिवन है, करंट रेशियो इज 2.5, करेक्ट। करंट रेशियो इज 2.5, दिस इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज विच इम्प्लाइज 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटीज जो कि आपका है
96,000. 96,000. So this into 2,40,000. 96,000 का करंट लाइबिलिटी इज योर करंट एसेट विच इज कितना है आपका 2,40,000. 2,40,000. So ये हो गया 2,40,000. Now since we have total current assets as 2,40,000, इसमें से हम एक एक एलिमेंट को डिडक्ट करते जाते हैं. So total current assets 2,40,000 लेस हमारे पास पहला करंट एसेट्स है इन्वेंट्रीज, राइट? 48,000. Inventory 48,000 and next we have cash. Cash 16,000. Cash is 16,000. तो ये डिडक्ट हो जाएगा अपना 48 and 16. This is 50, 60. 1,76,000. राइट. तो ये टोटल आपके पास जो बैलेंस बच गया, दिस बैलेंस इज Debtors. द बैलेंस इज डेटर्स एंड दिस इज 1,76,000, राइट? अब एक बार हमारे पास ये बैलेंस डेटर्स आ गया, इसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड, राइट? तो आप ये देखो, सी यहाँ पर अब आपके दिमाग में एक चीज और आएगा, दैट सर वी नीड एवरेज डेटर्स. और ये जो हमारे पास आया है ये कौन सा डेटर्स है, क्लोजिंग डेटर्स है ना? Closing. Oh. क्लोजिंग डेटर्स है. तो हम कैसे सर यहाँ पर एवरेज ले रहे हैं? तो व्हाट वी आर अज्यूमिंग हियर दैट अगर क्लोजिंग में आपके पास 1,76,000 के डेटर्स बचे हैं, दिस मीन्स ऑन एन एवरेज आपका 1,76,000 का डेटर्स बैलेंस रहता ही है, ठीक है? हम उसके बेसिस पे यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है Information. इसके लिए, ठीक है? सो ये आ गया 1,76,000. सो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 1,76,000 divided by total 6,40,000. 6,40,000. So this is 6,40,000 into 360. So ये आ जाता है 99 days. 99 days. Okay, into 360 divided by 6,40,000. तो ये पूरा पूरा 99 डेज आपका आंसर आ गया. बताइए जी, ये क्लियर हुआ? हाँ. दिस इज फॉर द बी पार्ट. ओके, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओके, सो दिस इज फ्रॉम द कैपिटल बजटिंग. और यहाँ वो आपको बता रहे हैं दैट अ कंपनी इज प्लानिंग टू परचेज अ मशीन, और उस मशीन का कॉस्ट आपको बता दिया 50,000 है विथ नो सैल्वेज वैल्यू. एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 years, और कंपनी अप्लाइज स्ट्रेट लाइन मेथड, and the estimated earnings after taxes 5,000 rupees. Now for 5 years required rate of return is 12%. Okay, should the company purchase as per NPV method? So अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर दो चीजें रखनी है. एक तो हमें इनिशियल कैश फ्लो चाहिए. जब भी कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आएगा, वी नीड, फर्स्ट इज वी नीड इनिशियल कैश फ्लो, देन वी नीड subsequent cash flow, right? And then we need to identify the terminal cash flow. सर 4 मार्क्स के लिए इतना कर लेते हैं, लेट्स नॉट स्क्रू इट आउट, राइट? तो अब अगर आप यहाँ पे चेक करो तो आपके पास इनिशियल कैश फ्लो क्या है, इट इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन, और तो कोई आ नहीं रहा है. सो योर इनिशियल कैश फ्लो इज कॉस्ट ऑफ द मशीनरी. सो कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 50,000 रुपीज, तो वो यहाँ पर आ गया. Okay, subsequent cash flow we know it is what? It is profit after tax plus the depreciation. Yes or no? Subsequent cash flow हमारे लिए यही होता है. हाँ. तो इस मतलब एटलीस्ट इस क्वेश्चन में यही रहेगा. तो हमें पता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज व्हाट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 5,000 एंड व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? तो आप ये देखो 50,000 का आपका मशीनरी है जो कि कितने साल चलने वाला है, 5 years, करेक्ट? सो दिस बिकम्स 15,000. Subsequent cash flow is 15,000. Initial cash flow is 50,000. And since there is no salvage or scrap value, तब तो हमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना यहाँ पर. So आपका salvage value आपके मशीन का nil है. This means the terminal cash flow is 0. अच्छा, life of machine कितना है? Life of machine is 5 years.
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% के हिसाब से। तो आप क्या करोगे, यू विल स्ट्रेट अवे गो टू द टेबल। टेबल में आप जाओगे, सर्च करोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और रादर क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 12%, और आप सर्च करोगे 5th ईयर में, राइट तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा 5 साल का वैल्यू एक साथ। सो लेट मी जस्ट गेट दैट क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। सो क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको ये दो टेबल मिलता है। वन इज द प्रेजेंट वैल्यू टेबल, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी, और यहाँ आपको टेबल मिलेगा जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल। ठीक है, तो जो टेबल नंबर 2 है, टेबल नंबर 2 इज योर क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, और ये आपका इंडिविजुअल ईयर का है। तो आप ये देखो, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई विल गो टू 12%, ओके, और 12% में दिस इज ईयर 1, this is year 2, this is year 3, this is year 4, and this is year 5. So I need this value 3.6048। तो अब मैं स्ट्रेट अवे क्या करूंगा, यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से ये आ गया मेरे पास, दिस इज 3.6048, 6048। अब ये अगर आ गया मेरे पास, तो मुझे इवेलुएट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं कैपिटल बजटिंग को, बिकॉज मुझे पता है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज, ये जो एनुअल कैश फ्लो मेरे को आ रहा है 15,000 का, राइट ये 15,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हर साल का कैश फ्लो सेम है। तो 15,000 इंटू 3.6048, ये आ जाता है 54,072। mistake, 3.6048, so this is 54,072 rupees, राइट और यहीं पर आप डिडक्ट कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आपको पता है इनिशियल में आपका 50,000 जाने वाला है, सो दिस इज 50,000 और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इसका 1 ही होगा, सो दिस इज 50,000 एंड नाउ वी गेट द एनपीवी which is present value of cash inflow minus present value of cash outflow, और ये हो गया प्लस 4,072। सो सिंपल, ये आपका कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे। बताइए, दिस इज क्लियर? हाँ। राइट अब ये वाला फॉर्मूला आपने ऐसा क्यों यूज किया, क्योंकि हर साल कैश फ्लो सेम था, बट सपोज करो वो आपको अलग अलग ईयर का प्रॉफिट देता, लेट्स प्रेज्यूम वो आपको ऐसे देता कि ईयर 1 के अंदर, ठीक है, जो आपका कैश फ्लो है वो है लेट्स से 7,000, ईयर 3 में आपका ईयर 2 में आपका कैश फ्लो आ रहा है 5,000, ईयर 3 में आ रहा है कैश फ्लो लेट्स से 10,000, ईयर 4 में वो बोलता है फिर से कैश फ्लो है 5,000। नाउ वी कैन नॉट डू दिस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे। सो व्हाट वी विल डू, अनलाइक व्हाट वी डिड हियर, वी टुक क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 12% फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पर अब हम हर साल का वैल्यू सेम लेंगे, मतलब हर साल का वैल्यू इंडिविजुअली यहाँ पर लेंगे। तो वी विल गो टू 12%, 12% में हम ये टेबल उठा लेंगे पूरा। सो फॉर एवरी ईयर वी विल मल्टीप्लाई द इंडिविजुअल अमाउंट्स। सो जैसे यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए आ जाएगा 0.8929, ये आया। अब सेकेंड ईयर के लिए मैं यहाँ पर 0.7972, तो दिस इज 0.7972, this will be 7118, so this is 0.7118 and this is going to be 6355, so this is 0.6355। तो हम ऐसे इंडिविजुअली करके यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालते हैं, राइट तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इंडिविजुअली एवरी ईयर, okay, instead of multiplying 15,000 individually every year, what we did is we took the cumulative value for the 5th year और स्ट्रेट अवे हमने आंसर निकाला। और ये कब यूज हो सकता है, जब हमारे पास हर साल कैश फ्लो सेम रहे, लाइक इट वाज इन दिस ईयर। ओके, और सर तब डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? तब भी सेम रहेगा, मतलब
जो भी आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो विद दिस ओनली, विद दिस कैश फ्लो ओनली। सो अगर मैं इसी इसी क्वेश्चन को ऐसे करने की बजाय इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा, तो व्हाट विल आई डू, सी आई डू इट दिस वे हियर। You see the answer is going to be same. This is 2, this is 5. I'll just change the amounts here. मैंने कैश फ्लो निकाल लिया, मुझे पता है हर साल का मेरा कैश फ्लो 15,000 रुपीज है. So what I'll do, I'll write here 15,000, 15,000, 15,000, 15,000. Even this will be 15,000 and I'll take the present value factor. This is 0.5674. So this is 0.5674 and I'll just multiply individually. और आप देखो आपके पास जो अमाउंट आएगा, it is going to be same 54,072 rupees. So you see this is 15,000 into 0.8929. So this is 13,393. Then this is 15,000 into 0.7972. So this becomes 11,958. Then it is 15,000 into 0.7118. So this is 10,677. 15,000 into 0.6355. So this is 9,532.5 है, मैंने डेसिमल को इग्नोर कर दिया. 15,000 into 567. 15,000 into 0.5674. So this is 8,511. Now just multiply, just add all the amounts. So 8511 plus 9532 plus 10,677, 11,958 plus 13,393. So this becomes 54,071. आया? So instead of doing the long cut, what we did, हमने बोला हर साल कैश फ्लो तो सेम ही आ रहा है, तो इसको तो 15,000 एज इट इज रख दिया एंड वी मल्टी एडेड दीज अमाउंट और इसका वैल्यू अपने पास निकल के आ गया था 0.30.3.6048. 6048. You see, you're going to get this amount straight away. आया समझ में? हाँ. तो वही लॉजिक वही है अपना, that A into let's say P plus A into Q plus A into R plus A into S. So what we can do, we can take A common इन सब में, हाँ. P है कि plus नहीं? Q plus R plus A. बस तो A मल्टीप्लाइड और हमने यहाँ पर P प्लस Q प्लस R प्लस S कर दिया. सो हियर A किसको सिग्निफाई करता है? A सिग्निफाई करता है आपका एनुअल कैश फ्लोस को, जो 15,000 था. दिस इज योर एनुअल कैश फ्लो और ये आपका मल्टीप्लाई कर, ये जो सिग्निफाई कर रहा है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. तो जब आपने इसको ऐड कर दिया तो ये बन गया आपके लिए cumulative present value factor. So annual cash flow into present value, cumulative present value factor, this becomes your present value of cash inflow. Simple. Okay. हाँ. अब सपोज अगर ये ऐसे होता, A into P into B into Q, C into R, D into S. Now we cannot do this. तब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, A into B. तो ये एक एक इंडिविजुअली आपने सॉल्व किया. तो अगर कैश फ्लोज हर साल अलग अलग हो जाते तो फिर यहाँ पर कैलकुलेशन अलग तरीके से होता. बट सिंस दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन, तो 4 मार्क क्वेश्चन में आपको अलग अलग कैश फ्लोज वाला क्वेश्चन शायद नहीं मिलेगा. यू कैन स्ट्रेट अवे कैलकुलेट लाइक दिस. ओके, ऑलराइट. फिर हम चलते हैं आगे एंड लेट्स सी. ओके, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन जिसमें आपको बता रहा है दैट देयर इज अ न्यू प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन व्हिच रिक्वायर्स अ कैपिटल outlay of 300 lakhs, for which funds can either be raised by way of issue of equity shares of rupees 100 each for the entire sum, or by issue of equity share to tune 200 lakhs, and by issue of 15% loan of 100 lakhs. Find out the indifference level of EBIT if the tax rate is 50%. Okay, so indifference point निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि indifference level है क्या. Indifference level of EBIT. So indifference level of EBIT means it is that level of EBIT
when EPS is 0। Zero. ये वो लेवल हो जाएगा EBIT का जहां पर EPS 0 आ जाता है। अब इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो we calculate it like this, so EBIT माइनस इंटरेस्ट। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो सिर्फ इंटरेस्ट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस Tax. टैक्स रेट डिवाइडेड बाय Number of नंबर ऑफ शेयर्स। और कौन से वाले, इक्विटी वाले। इसको हम इक्वल करेंगे किसके साथ, EBIT, ठीक है। अब क्योंकि इंटरेस्ट होगा नहीं आपके पास यहाँ पे, तो स्ट्रेट अवे हम यहाँ पर 1 माइनस टैक्स कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन 1 जो है वो पूरा इक्विटी है। हाँ. This divided by again number of equity shares. So this is option number 2 and this is option number 1. So before I would suggest before you solve this question, पहले तो ये फॉर्मूला आपने लिख लिया, तो आपको पता है you need what, Number of. EBIT। हाँ, EBIT is something which you need to find out. You need to calculate the what is going to be the interest and you need to find out what is going to be the number of shares. So under option 1, under ऑप्शन 1 आप यहाँ पे देखो, अमाउंट आपको रेस करना है 300 lakhs, ठीक है ना। सो अमाउंट टू बी रेस्ड इज 300 lakhs और एक शेयर आप कितने पे इशू करोगे, 100 rupees. राइट। सो वैल्यू या फिर इशू प्राइस पर शेयर, दिस इज 100, करेक्ट, राइट। हाँ. 100 रुपीज का आप यहाँ पे शेयर इशू कर रहे हो, तो आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 3 lakhs. बस ये ध्यान रखना कि इसको आप यहाँ पे सिर्फ 3 लिख के मत छोड़ देना, because then it is going to be a problem. हाँ. This is going to be 3 lakhs. Okay. और इंटरेस्ट आपके लिए यहाँ पर क्या रहेगा, 0, 0. क्योंकि आप डेट यूज ही नहीं कर रहे। और सिमिलरली अंडर ऑप्शन नंबर 2, तो आपको एक कैलकुलेट करना है, व्हाट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स में आप अमाउंट कितना रेज करोगे, 2 lakh. 200 lakhs हाँ, 200. divided by 100 rupees per share. So you are going to get 2 lakh shares, करेक्ट। और आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी 15 100, lakhs. हाँ 100 lakhs इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, सो 100 lakhs इनटू 15%, ये आ गया आपके पास 15 lakhs, राइट। तो अब जैसे ही हमारे पास ये आ गया, अब इस फॉर्मूला के अंदर हमें फिट इन करना है। तो आपके देखो EBIT अपने को फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट हमें पता है इट इज 15 और रादर 15 lakhs, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं आंसर के ऊपर ही लिख देता हूं यहाँ पर ऑल रुपीज इन लैक्स, करेक्ट। द कैलकुलेशन इज इन लैक्स ओनली। तो EBIT माइनस 15, फिर यहाँ पर मेरे को क्या करना है, इंटरेस्ट रेट। सो इंटरेस्ट रेट इज 1 माइनस 5050। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ शेयर्स था वो कितना है, 2। 2. हियर वी हैव टू फाइंड आउट EBIT। इंटरेस्ट तो 0 है, तो स्ट्रेट अवे आ जाएगा 1 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 3। अब बस हमें यहाँ पर इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, राइट। सो इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, तो ये बन जाता है 3 को इधर ले जाते हैं, 2 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको सॉल्व करना है। 2 वुड गो हियर एंड 3 वुड गो हियर। सो 3, अब देखो ये आ जाता है 0.5, करेक्ट। 1 माइनस 0.50 0.5, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, सो 0.5 इंटू 3 इज 1.5। तो दिस बिकम्स 1.5 इंटू EBIT माइनस 15। आई होप 1.5 आपको समझ में आया, करेक्ट। हाँ. हाँ. और ये हो जाएगा, देखो दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 0.5, ये भी 0.5 है, 0.5 इंटू 2 दिस इज 1, राइट। आप ये देखो 2 इंटू 0.5 दिस बिकम्स 1, यस और नो।
यस। तो ये बन जाएगा सिर्फ EBIT, करेक्ट। अब यहाँ पर इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस बिकम्स 1.5 EBIT माइनस 15 इंटू 1.5 अगर आप करोगे, this is going to be 22.50 and this is 5। EBIT. This is 0.5 EBIT is equal to 22.5, which implies the EBIT has to be 22.5 divided by 0.5, so this is 45 lakhs. बताइए जी, क्या ये आया समझ में? Could you comprehend this question? यस सर। 45 lakhs, सिंपल क्वेश्चन ये वाला अपना, राइट। सो ये था। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है। सो दिस इज फॉर द बॉन्ड। अब ये आपको बता रहा है दैट दिस इज अ परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड मतलब ये रिडीम नहीं होगा, इररिडीमेबल बॉन्ड है, करेक्ट। बॉन्ड कितने का है? 100 रुपीज का, विच मीन्स द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 100 एंड करेंटली इट इज सेलिंग फॉर 95। तो इसका करंट मार्केट प्राइस हो गया 95। द कूपन रेट इज 13.5%, मतलब जो इंटरेस्ट आपको इसके ऊपर मिलेगा, सो दिस इज 13.5% एंड द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 15%। तो यहाँ पर आपके पास जो डिस्काउंट रेट हो गया, दिस इज 15%. Now they are asking you to calculate what is the value of the bond. Then it says that should it be bought, correct? And what is yield to maturity. तो तीन चीज आपसे यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोला। सबसे पहले आपको बोलते हैं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। सो इफ यू रिमेंबर, जब मैंने कैश फ्लोज का कैलकुलेशन आपको समझाया था प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, now since this is a perpetual bond, this means every year you are going to get an interest of 13 rupees 50 paisa, yes or no? Since this is a perpetual bond, right? So the interest derived would be 13.50. So this is going to be the cash flows, correct? And this is which type of a cash flow? Infinite years तक आपका grow करता रहेगा. तो what is the value of such cash flow? What is the value of such cash flow? यही क्या बन जाएगा? आपका value of bond. So what is the present value of the cash flow? Present value of cash flow is what? It is the cash flow, क्योंकि infinite है, divided by the discount rate. याद आ रहा है? सर ये कैपिटल बजटिंग में था क्या? ये याद नहीं आ रहा। ये हम लोगों ने 2 बार पढ़ा है। एक बार तो जब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का वैल्यूएशन पढ़ रहे थे हम लोग, तब हम लोगों ने देखा था। और एफएम में जब हमने डिविडेंड पॉलिसी शुरू किया था, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टाइम पे मैंने आपको बताया था। एंड इवन इफ यू रिमेंबर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी विदाउट ग्रोथ, याद आ रहा है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी विदाउट ग्रोथ, उसमें भी तो हम ऐसे ही करते थे ना, एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय केई। वो क्यों करते थे? लॉजिक यही था ना, क्योंकि इट इज अ कैश फ्लो विच इज गोइंग टू डिराइव इन फ्यूचर इनफाइनाइटली, करेक्ट। हाँ। तो ऐसे कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? इस तरीके से, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो विल बिकम द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। वैल्यू ऑफ बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो कैश फ्लो अपना एनुअल कैश फ्लो है 13 रुपीज 50 पैसा, और डिस्काउंट रेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है 15%. सो दिस implies what is the value of bond? 13.5 divided by 15%. So this is 90 rupees. आप बताओ, is this clear? हाँ। So this was a very smart question which they had asked. कोई बहुत ज़्यादा वैसे difficult नहीं है, but straight away आपने यहाँ पे लिखा what is going to be the value of bond. तो value of bond आपका 100 rupees which is the face value into coupon rate which is 13.5% divided by discount rate which is 15%. तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ बॉन्ड 90। नाउ सेकेंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है शुड इट बी बॉट। तो आप देखो, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 90, करेक्ट, एंड द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज
95, तो आप क्या बोलोगे? शुड दिस बॉन्ड बी परचेस्ड और दिस बॉन्ड शुड नॉट बी परचेस्ड? दिस इज एज पर आवर वैल्यूएशन. This is as per our valuation, Not purchased. not purchased. Why? This is the market valuation. Market price is more than the क्योंकि आप क्या expected. बोलोगे? Yes. क्योंकि आप बोलोगे हमारे हिसाब से बॉन्ड का वैल्यू 90 रुपीज है. However, market is valuing at 95. So this bond is overvalued. And now since this bond is overvalued, you are not going to buy. Not to be bought. It should not be bought. Okay. Is this clear? हाँ. अब थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज यील्ड टू मैच्योरिटी. सो यील्ड टू मैच्योरिटी का यहाँ पे मतलब होता है YTM. तो अब YTM आप कैसे निकालोगे? आप देखो, यील्ड इज बेसिकली ऑन द मार्केट वैल्यू. यील्ड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट वैल्यू. सो इवन दो यू आर गोइंग टू गेट इंटरेस्ट ऑफ 13.5% ऑन 100 रुपीज, बट फॉर दिस व्हाट अमाउंट यू हैव पेड? What amount you have paid? You have paid 95 rupees, है कि नहीं? तो 95. इफेक्टिवली आपके लिए क्या रहेगा यहाँ पे? This is 13.50 divided by 95. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो आ रहा है 14.21%. So this is yield to maturity. ये बताइए, इज दिस क्लियर? हाँ. तो ये अपने पास एक और बॉन्ड का क्वेश्चन था. अब ये अचानक से गूगली क्वेश्चन था. अरे नहीं आया मुझे. ये ट्रेजरी वाला क्वेश्चन आता है. ट्रेजरी वाले पार्ट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा बॉन्ड्स का. और इनफैक्ट आई वुड आल्सो से इन दिस पेपर, लाइक यस्टरडे आफ्टर द लेक्चर वी हैड दैट डिस्कशन अबाउट कि इजी क्वेश्चंस आते हैं. सो दिस क्वेश्चन वाज अगेन अ गूगली. इट इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड कि करंट रेशियोज और ये सब देख के इन्वेंट्री. ना इन दिस क्वेश्चन इफ यू डोंट नो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये पार्ट खत्म हो गया आपके लिए. And if you don't know how to calculate this using current ratio, how to calculate the current assets and all, तो second part आपके लिए खराब हो गया. तो this 4 marks gone. तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सडनली सरप्राइज फॉर्म में मिल जाते हैं. इसके पहले भी जो ये क्वेश्चन था ना, दिस वाज इजी क्वेश्चन. ये तो इजी, इससे पहले तो ये सब तो इजी था. अब ना दिस इज अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. आई डोंट नो व्हाई इंस्टीट्यूट कीप्स ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन. और आगे भी पूछा हुआ है इस टाइप के क्वेश्चंस को उन्होंने. तो ऐसे कुछ इजी क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ ऐसे आपको गूगली क्वेश्चंस मिलेंगे विच माइट सरप्राइज यू, बट फॉर श्योर पेपर वोंट बी डिफिकल्ट, ये श्योर है. राइट तो ये बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन आ गया. अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं. दिस इज अ कंपनी विच इज पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 2 rupees per share and the dividend is expected to grow 15% annually for the next 3 years, and then at the rate 10% for the next 3 years after which it is expected to grow at the rate 5% forever. Now find out the present value of the share if the capitalization rate is 9%. Okay, so since we have growth here, okay, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? We are going to use the Gordon formula, है कि नहीं, to calculate the value of share. So यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपके पास आ जाएगा, we will use the Gordon formula. तो गॉर्डन फॉर्मूला में क्या होता है? गॉर्डन फॉर्मूला में वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड ड्यूरिंग हाई ग्रोथ पीरियड, है कि नहीं? 5% से कांस्टेंट हो रहा है, उससे पहले तो 10 और 15 है. सो विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड ड्यूरिंग हाई ग्रोथ पीरियड. और इसमें हम फिर ऐड कर देंगे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ हाई ग्रोथ पीरियड. राइट ये हमारा कैलकुलेशन रहेगा. तो जो हाई ग्रोथ पीरियड है वो कौन सा ईयर्स है? इनिशियल 3 years विथ 15% एंड देन बैलेंस 3 years विथ 10%. करेक्ट. सो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए?
we need D1, right? We need D1, D2 and we need D3. ये तीन ग्रो करेगा 15% के हिसाब से. Then we need D4, D5, D6 जो कि ग्रो करेगा 10%. 10% के हिसाब से. And then we need P6, the present value of the share at the rate high growth period. ये देखो, ये इधर, ये इधर और ये इधर. करेक्ट. अब P6 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड D7 अपॉन KE माइनस G. राइट. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट D1 से लेके D7 तक. एंड विथ D7 वी कैलकुलेट P6 और उन सबका प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे. नाउ यहाँ पर आपको बताया हुआ है that a company is currently paying a dividend of 2 rupees per share. Now tell me, when it says currently paying a dividend of 2 rupees per share, this is what, D1 or this is D0? This is D0 because present tense में आंसर है, तो this is D0. अगर ये ऐसा दिया हुआ रहता कि in future it is expected to pay, मतलब अगर ऐसा देता लैंग्वेज, अगर ऐसा रहता इन फ्यूचर इट इज एक्सपेक्टेड टू पे, प्लानिंग टू पे, तो वो D1 हो जाता. लेकिन क्योंकि यहाँ पर D0 दिया है, तो अपने को पता है कि D0 इज 2 रुपीज. करेक्ट. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, D1 कैलकुलेट कर देंगे पहले. तो D1 वुड बी व्हाट, इट विल बी D0 1 plus G. करेक्ट. So this is going to be 2 into 1 plus this is 15%. तो ये आ गया 2.3. करेक्ट. 15%. राइट. सो दिस इज 2.3. इसी तरह से हम यहाँ पर D2 भी कैलकुलेट करेंगे विच विल बी D1 1 plus G. So this is 2.3 1 plus 0.15. तो ये वैल्यू आता है 2.3 into 2.645. देन हम यहाँ पर D3 कैलकुलेट करेंगे विच विल बी D2 1 plus G. So this is 2.645 1 plus 0.15. This into 15%. So this becomes 3.04. अच्छा, हम एक काम करते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लेते हैं. राइट. तो ये अपने पास आ गया. अब आपको क्या ध्यान रखना है, 10%. हाँ, यहाँ तक ग्रोथ आपका 15% था, अब ग्रोथ 10% हो जाएगा. बट 10% ऑन व्हाट, 10% ऑन 3.04. सो दिस इज गोइंग टू बी D3 1 plus G. So this is 3.04 and this is 1 plus 0.10. This into 10%. So this becomes, yes, this becomes 3.34. Then we need D5, which is going to be D4 1 plus G. So this is 3.34 1 plus 0.10. 3.67. 3 पॉइंट. अच्छा, तो मैंने फुल अमाउंट के साथ कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, तो वो 3.68 आया. However, you can also take D 3.67. This is D5 1 plus G. So this is 3.68 1 plus 0.10. So this into 10% अगर आप करते हो, तो this becomes 4.04. right? तो D6 तक आ गया. Now we need D7. करेक्ट. और उससे हम फिर P6 कैलकुलेट करेंगे. तो D7 क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी D6 1 plus G. अब ध्यान क्या रखना है कि अब आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो 5% के ग्रोथ रेट से मिलेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 4.04 1 plus 0.05. So this into 5%. So this becomes 4.25. बताइए जी, ये क्लियर हुआ? हाँ. But do we actually need D7? No, we need to calculate P6. तो यहाँ से हम P6 भी कैलकुलेट कर लेते हैं. P6 is D7 upon KE minus G. तो ये हो जाता है 4.25.
कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपने को पता है, इट इज 9% and growth rate is 5%. So this is 4.25 divided by 4%. So 4.25 divided by 4%, which is 106.25, right? अब बस हमें इन सब का क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू लेना है. सो व्हाट यू कैन डू, नाउ वी आर अगेन गोइंग टू यूज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल. ये देखो, अब इस बार मैं कौन सा लूंगा, मैं इंडिविजुअल वाला टेबल लूंगा. एंड व्हाट विल आई डू, आई विल टेक 9%. ओके, 9% वाला वैल्यू और ये पिक करूंगा 6 years. ओके, आई एम गोइंग टू टेक दीज अमाउंट्स और इसके बेसिस पे मैं ये वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस क्योंकि अलग अलग वैल्यू आ गया, तो इसको मैं यहाँ पर अब टेबल बना के सॉल्व कर लेता हूँ. सो व्हाट डू आई डू, आई राइट हियर D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड P6. ओके, तो इंडिविजुअली सबका मैं अमाउंट लिखते जाता हूँ. तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाता है 2.3. देन आई हैव 2.64. देन आई हैव 3.04. देन आई हैव 3.34. देन आई हैव D5 3.68 0.04 एंड 4.04. 4.04 और P6 मेरे पास है 106.25. So this is 106.25, करेक्ट. अब यहीं पर मैं वो सारे जो 6 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स है उसको लिखते जाऊंगा और मेरे पास वैल्यू आ जाएगा. तो फर्स्ट जो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था, दिस वाज 0.9174. नेक्स्ट वाज 0.8417. दिस वाज 0.7722. then this is 0.7084, 0.6499. अब ध्यान रखना यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा 5963, ये सेम आएगा बिकॉज बोथ द कैश फ्लोज आर अराइजिंग इन 6th ईयर, राइट. तो इसका आप टोटल वैल्यू निकाल दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा. So this is going to be the value of share. So 2.3 into 0.9174 is 2.11. 2.64 into 0.8417 is 2.22. 3.04 into 0.7722 is 2.34. 3.34 into 0.7084 is 2.36. 3.68 into 0.6499 is 2.39. 4.04 into 0.5963 is 2.40. 106.25 into 0.5963 is 63.35. अब हम टोटल लगा लेते हैं 63.35 plus 2.4 plus 2.39 plus 2.36 plus 2.34 plus 2.22 plus 2.11. सो ये आ गया आपके पास 77.17. बताइए, इज दिस क्लियर? यस सर सो ये हो गया आपके पास वैल्यू ऑफ द शेयर एट द एंड. बताइए, इज इट इजी? हाँ इज इट इजी ये वाला? इसी को अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 2.30 अपॉन 1.09 टू द पावर 1, जैसा हम लोगों ने CRI में कैलकुलेट किया था. दिस इज 1.09 टू द पावर 2. ओके, इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अल्टीमेटली बात यही है आपका, बट सिंस यू हैव द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल हियर गिवन, तो आप स्ट्रेट अवे यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो. बताइए, इज दिस क्लियर? हाँ
ओके, फिर इसमें शायद एक पार्ट और रहता है. What if the share is held for 3 years? What shall be the present value? तो ये सेम तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व करोगे कि जो भी इनका प्रेजेंट वैल्यू रहेगा उसको आप ऐड करते जाओ. 3 साल तक अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे, सो सेम पॉइंट आपका रहेगा. 3 साल तक का आपका ये जो वैल्यू आता है, इनका जो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ रहा है, इसी प्रेजेंट वैल्यू को लो और आप ऐड कर दो वैल्यू ऑफ शेयर के साथ में, राइट? तो ये सिंपल आपका क्वेश्चन रहा. इसमें ये बस खाली ध्यान रखना, दिस वे यू डू द टेबल एंड यू गेट इट राइट. फिर नेक्स्ट आपके पास आता है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द फॉरेक्स. और फॉरेक्स में यहाँ पर आपको अगेन 8 मार्क्स का क्वेश्चन है. एंड इट सेज दैट एन इंडियन इंपोर्टर हैज टू सेटल अ import bill of Singapore dollar 1,30,000 and the exporter is given the Indian exporter two options: either pay immediately without any interest charge or pay after 3 months with interest of 5%, and the importer's bank charges 15% annum per annum for the overdraft. तो इंडियन इंपोर्टर का जो बैंक है वो 15% पर एनम लेता है. तो बेसिकली आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो अभी 1,30,000 सिंगापुर डॉलर पे कर दो, और अभी पे करोगे तो यू आर गोइंग टू यूज दिस रेट, और पे with 5% interest. So when you pay with 5% interest, you are going to pay interest on this 1,30,000 dollars. So here you will have to pay 1,30,000 सिंगापुर डॉलर, और यहाँ पर आप पे करोगे डॉलर 1,30,000 इंटू ये 5% आपका इसमें ऐड हो जाएगा. सो 1,30,000 इंटू 5%, सो दिस बिकम्स 6,500 इंटू नहीं ऐड हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा. सो दिस अमाउंट यू विल हैव टू पे. अब ओनली थिंग इज इफ यू आर गोइंग 3 टू, months का है ना? पार्डन? 3 months का है. अच्छा सॉरी, सो 1,30,000 इंटू 5% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, आई एम सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 1,625. सो अगर आप यहाँ पे अभी के अभी 1,30,000 डॉलर पे करोगे, तो आपको इंडिया में बैंक से लोन लेना पड़ेगा जो भी आपको यहाँ पर पे करना है, और उस पर आप 15% इंटरेस्ट पे करोगे. या फिर आप कुछ भी लोन वगैरह नहीं लोगे, और आज से 3 महीने के बाद 1,30,000 डॉलर प्लस $1,625 आप पे करोगे यूजिंग द स्पॉट रेट. अब ये दो रेट्स आपके पास गिवन है, आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा रेट आप लोगे? Ask. ओके, आस्क मीन्स आप यहाँ पे बताओ, यू विल टेक 48.35 और यू विल टेक 36. 48.36. क्यों? क्योंकि आप बैंक से डॉलर बाय करोगे, है कि Bye. नहीं? सो द इंपोर्टर is going to buy the Singapore dollar at this rate, करेक्ट? तो ये दो रेट्स आपके लिए रेलेवेंट है, इसका कोई आपको लेना देना नहीं है. आप बताइए जी, ये क्लियर हुआ? हाँ. ओके, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टू पे इमीडिएटली. सो इफ यू पे immediately, for this the importer will take a bank overdraft, है कि नहीं? Importer will take overdraft from the bank, करेक्ट? तो कितना लेगा वो, अब देखो, पे इमीडिएटली तो यूजिंग स्पॉट रेट, पे इमीडिएटली. तो आपका डॉलर का पेमेंट है 1,30,000, और यहाँ पर है आपके पास 48.36, दिस इज 48.36. तो ये अमाउंट कितना आता है आपके पास, 1,30,000 इंटू 62, 86, 800. 62 लाख 86,800. 86,800, correct? So this is going to be paid and this amount will be borrowed. So borrow rupees 62 lakh 86,800 at the rate
15%, 15% ये, हाँ 15% फ्रॉम द लोकल बैंक 3 मंथ्स के लिए। तो आप देखो आपका नेट पेमेंट क्या हो जाएगा। नेट पेमेंट विल बी, एक तो यह आपको पे करना ही करना है, इसके अलावा आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 62,86,800, इसके ऊपर 15% इंटू 3/4, तो ये अमाउंट कितना निकल के आता है? 2,35,755 2,30,755 5,755। तो आप देखो अगर वो इमीडिएटली पे करेगा तो उसका नेट पे ऑफ कितना है, या उसका नेट कॉस्ट उसको कितना पड़ता है सर 3/12 है ना, वो तो इसमें? पाया ना मैं। इसको मैंने 12 ही किया है, ये सॉरी 4 गलती से हो गया, वो एक्चुअली मेंटल कैलकुलेशन 3/12 4, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक तो 62,86,800 ये आपका पेमेंट होगा, 62,86,800 ये आपका एक पेमेंट होगा। इसके अलावा आप एक पेमेंट और करोगे, दैट वुड बी द इंटरेस्ट अमाउंट 2,35,755 प्लस 2,35,755, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना पड़ा? 65,22,550 65,22,555. 555। Now this we are going to compare with the option number 2, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो पे आफ्टर 3 मंथ्स, सो इफ इट इज पेड आफ्टर 3 मंथ्स तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक तो आपका इनवॉइस अमाउंट आप पे करोगे एंड योर इनवॉइस अमाउंट इज $1,30,000 प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है 1635 25 25 1625. So the bill will be total amount to be paid in foreign currency. This will be 1,31,625, and this will be paid using the 3-month forward rate of 48.83. So this is going to be 3-month forward rate 48.83. तो आप इसमें देखो ये आपका total amount. So this was total amount in dollar, this is total amount in rupees. तो ये कितना आता है? 64,27,248. Okay, so this is rupees 64,27,248. तो डेफिनेटली यहाँ 65,000 लाख का पेमेंट हो रहा है और यहाँ पर 64 लाख का पेमेंट हो रहा है. सो विच वन इज अ बेटर ऑप्शन? To settle bills after आफ्टर 3 मंथ्स. तो ये वाला आपके लिए, तो इसी के एंड में आप यहाँ पर एडवाइस भी लिख दोगे. आई यूज्ड टू राइट एक्सपर्ट ओपिनियन एग्जाम में. I have actually written in the exam this way, एडवाइस की बजाय एक्सपर्ट ओपिनियन. बट आप लोग ऐसा नहीं करना, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू राइट दिस एक्सपर्ट ओपिनियन. और यहाँ आ जाता है एडवाइस, द इम्पोर्टर, इन्फ्रेंस पे लिख सकते हैं ना. हाँ बिल्कुल, द इम्पोर्टर मस्ट पे टू द एक्सपोर्टर आफ्टर 3 months, right, with interest at the rate 5%, right. ये वाला बताइए जी, ये क्लियर हुआ? हाँ. ओके, अब आते हैं हम अपने इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे जो हमारे पास है कैपिटल बजटिंग से.
अब अगर आप कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन देखो तो जैसे इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज नीडेड would be your you need to find out what is your initial cash flow, what is your subsequent cash flow and what is your terminal cash flow. ये तीन कैश फ्लोज आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तीनों कैश फ्लोज अगर आप सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपका मोस्टली आंसर करेक्ट होगा, मतलब गलती होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होंगे. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट कैश फ्लोज विच आर इन्वॉल्व हियर. तो फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो इधर आ रहा है गोल्ड लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू replace an existing equipment. So this is a question of replacement decision. ठीक है. अब आगे आपको बता रहा है the new equipment is operationally efficient and will result in savings in the operational cost at the rate 1,50,000 per annum. तो ये एक आपका कैश फ्लो आ गया कि आपके लिए एनुअल जो सेविंग्स होगा वो कितना होगा 1,50,000. Then it says that it will cost rupees 3 lakh and it will be purchased at the beginning of the year. The equipment dealer states that most of the companies use it for 4 years life. ठीक है, तो ये आपका 4 साल का इसमें लाइफ रहेगा फॉर डेप्रिसिएशन. आगे बता रहे हैं एज द इक्विपमेंट विल बी ऑपरेशनल इन द मिड ऑफ द ईयर only 60% of the estimated annual savings will be obtained in the first year. This means फर्स्ट ईयर में आपको 1,50,000 का पूरा बेनिफिट नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में खाली 60% का बेनिफिट होगा और आने वाले 3 साल में आपको 100% बेनिफिट रहेगा. Then it says that a one-time expense of rupees 30,000 will be incurred for transferring production activities from old to new equipment. Okay, so this is an expense here. Then it says that the equipment currently in use is fully depreciated and has got no book value. This means the current depreciation is zero. Yes or no? हाँ. क्योंकि अगर रिप्लेसमेंट डिसीजन का बात हो रहा है तो हम हर चीज इंक्रीमेंटल बेसिस पे देखेंगे. ओके, आगे बता रहा है however it its condition reveals that it can be used for additional 5 years. और अभी अगर फॉर्म इसको बेचेगा तो फॉर्म को कितना मिलेगा 5,000 रुपीज मिलेगा. Then it says that company uses straight line method of depreciation. Thank God, otherwise एक depreciation का working note और बनता टेबल, right? So SLM is that way a savior. And assuming that full year's depreciation is taken into account in the first year, and the corporate tax rate for all revenue and gains is 30%. Now gains 30% अगर बोल दिया है, दिस मीन्स ये कौन से टैक्स का बात कर रहा है, कैपिटल गेन टैक्स. अदरवाइज यहाँ पर हम कैपिटल गेन टैक्स को इग्नोर कर देते, बट क्योंकि यहाँ पर गेन्स वर्ड उसने यूज कर दिया तो कैपिटल गेन होगा. बिकॉज आप देखो ओल्ड मशीन का बुक वैल्यू 0 है और आपको 5,000 रुपीज मिलेगा. सो देर इज गोइंग टू बी अ कैपिटल गेन ऑफ 5,000 रुपीज. सो ये 5,000 रुपीज का ऊपर आपका 30% टैक्स आपको पे करना है. देन इट सेज दैट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर जो होगा वो क्या रहेगा अपना 15% के हिसाब से. एंड देन इट इज आस्किंग यू व्हाट एक्शन शुड be taken by the management of Gold Limited. Okay, fair enough. First, we are going to find out the different cash flows which are there. तो आप देखिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले इनिशियल कैश फ्लो, राइट. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द इनिशियल कैश फ्लो. आप देखिए आप इनिशियल कैश फ्लो में सबसे पहले ये 3 लाख रुपीस के मशीन को लोगे, राइट. तो जो जो कैश फ्लोस हम लिखते जाएंगे मैं उसको हाईलाइट करते रहूंगा. तो आप सबसे पहले यहाँ पर 3 लाख रुपीस का मशीन परचेज करोगे, करेक्ट. सो इनिशियल कैश फ्लो वुड बी, फर्स्ट वुड बी व्हाट, इट वुड बी द कॉस्ट ऑफ मशीन, करेक्ट. एंड द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 3 लाख. डन. इसके अलावा आप यहाँ पे चेक करो, यू आर ऑल्सो गोइंग टू डू दिस वन टाइम एक्सपेंस ऑफ 30,000, करेक्ट. अच्छा, क्या ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है? बिकॉज अगेन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये 30,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है तो ये डेप्रिशिएट भी होगा और कॉस्ट ऑफ मशीन 3,30,000 हो जाएगा. लेकिन अगर ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंस नहीं है तो फिर ये अभी के अभी पीएनएल में डेबिट हो जाएगा. तो आप बताओ क्या ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है? नो. नो, दिस इज एक्सपेंस जो आप क्या कर रहे हो, ओल्ड मशीन से न्यू मशीन में शिफ्ट करने के लिए कर रहे हो. ठीक है, यार है यहाँ पे ट्रांसफरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज. तो दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पर आपका एक और एक्सपेंस हो जाएगा
So this is going to be the shifting expenditure, right? अच्छा, क्योंकि ये शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर आपका है तो इसको हम कैसे लेंगे? नेट ऑफ टैक्स, यस और नो? शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर वी आर गोइंग टू टेक नेट ऑफ टैक्स। तो नेट ऑफ टैक्स का क्या मतलब हो जाता है कि देखो, जहां आप 30,000 रुपीज का एक्सपेंस करोगे वहीं पर आपका 30% टैक्स भी तो बचेगा, यस और नो? सो 30,000 इंटू 1 माइनस 0.30, आप बताइए, इज दिस क्लियर? सो ये हो गया आपके लिए 21,000। ध्यान रखना ये सब आउटफ्लो है, ये भी आउटफ्लो है, ये भी आउटफ्लो है। ओके, फर्दर आप यहाँ पे चेक करो, आप ओल्ड मशीन को सेल करोगे, है कि नहीं? तो दिस इज गोइंग टू बी द स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। तो ओल्ड मशीन का स्क्रैप वैल्यू इज 5,000 रुपीज। ये आपके लिए क्या होगा? इनफ्लो। लेकिन इसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, this is positive, okay, and this is negative and this is going to be capital gain tax। और कैपिटल गेन टैक्स कैसे निकलेगा आप देखो, सेल्स कंसिडरेशन 5,000 माइनस बुक वैल्यू 0, तो आपका कैपिटल गेन हो गया 5,000 और इसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा एट द रेट 30%, सो ये हो गया 1,500। आप बताओ जी, क्या ये क्लियर हुआ आपको? हाँ। तो आपका इनिशियल कैश फ्लो कितना हो गया? योर इनिशियल कैश फ्लो इज, आप ये देखो, 3 लाख प्लस 21,000 प्लस 1,500, ये टोटल आउटफ्लो है जिसमें 5,000 का आपको इनफ्लो है। सो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव 3,17,500। डज दिस मेक सेंस? 3,17,500, ओके। अच्छा, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सब्सिक्वेंट कैश फ्लोज, राइट? अब सब्सिक्वेंट कैश फ्लो में आप देखो, सब्सिक्वेंट कैश फ्लो में वो आपको बता रहा है आप हर साल सेव करोगे 1,50,000 रुपीज, राइट? सो योर एनुअल सेविंग्स फॉर 4 years विल बी व्हाट? 1,50,000, करेक्ट? जिसमें ईयर 1 में आपको खाली 60% का ही सेविंग होगा और ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4 में आपको 100% बेनिफिट होगा, करेक्ट? यस और नो? हाँ। तो ये आपका एनुअल सेविंग हो गया इधर 15,690 और यहाँ पर आपको 1,50,000, 1,50,000 एंड 1,50,000, ये आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है? ओके, फर्दर अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो दूसरा आपके पास इंपॉर्टेंट कैश फ्लो होगा डेप्रिसिएशन, यस और नो? और डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 3 लाख रुपीस का मशीन, उसको आप 4 इयर्स में स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करोगे, करेक्ट? सो 3 लाख रुपीस 75,000 डिवाइडेड बाय 4 इयर्स, तो 75,000। अभी सपोज करो दिस इज द न्यू डेप्रिसिएशन, ओके? अगर यहाँ पर ओल्ड डेप्रिसिएशन कुछ होता तो हम वो भी लिख देते, बट क्योंकि आपका ओल्ड डेप्रिसिएशन यहाँ पर नील है, 0, तो आप क्या बोलोगे? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ओके? सो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इज 75,000। रिप्लेसमेंट डिसीजन है ना, तो हम ये चेक करेंगे पुराने मशीन में क्या होता था, अभी क्या रहेगा। तो पुराने मशीन में ये 90,000 का सेविंग नहीं होता था, 1,50,000 का सेविंग नहीं होता था, नए मशीन में होगा। तो दिस इज बेसिकली इंक्रीमेंटल सेविंग्स ना। तो हम रिप्लेसमेंट डिसीजन में सब वैसे भी इंक्रीमेंटल बेसिस पे डिस्कस करते हैं, तो ये इंक्रीमेंटल बेसिस पे आ गया, ओके। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो
अब हम एनुअल कैश फ्लोज निकालेंगे और हमारा एनुअल कैश फ्लो क्या होगा आप देखो, देयर इज गोइंग टू बी increase in profit, or rather I would say there is going to be savings in expense. Now since there will be savings in expense, ये आपके लिए positive होगा. This is going to be 90,000. This is going to be 1,50,000. This is going to be 1,50,000 और अगले साल भी 1,50,000. राइट, तो मैं यहाँ पर years भी लिख देता हूँ. So this is year 1, year 2, year 3 and year 4. Okay, but there is going to be depreciation also. कितना? 75,000. तो हर साल 75,000 का आपको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगा. अब ये होने की वजह से आपके पास क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स. राइट और रॉन्ग? यस. ये आपका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज 15,000, दिस इज 75,000, दिस इज 75,000 एंड दिस इज 75,000. कितना अच्छा होता अगर ये भी 150 होता, तो हर साल का सेम ही हो जाता ना, हम क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेके सॉल्व कर लेते. बट इस बार हमें अलग अलग करना पड़ेगा. नेवर माइंड. अब ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से हम टैक्स को डिडक्ट करेंगे एट द रेट 30%. सो पर्सनली आई फील इवन इफ आप नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, आप सिंपली ऐसे लिख दो -30%, -30%, -30%, -30%, क्योंकि ये अमाउंट से आपको वैसे भी कुछ नहीं करना, तो आप सिंपली ऐसे लिख दोगे फिर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो आप कैलकुलेटर पे स्ट्रेट अवे 15%, 15,000 का 30% सीधा डिडक्ट भी करके लिखोगे अमाउंट तो भी चलेगा, 10,500. ओके, अब यहीं पर आप क्या करते हैं ना, जस्ट राइट प्लस डेप्रिसिएशन और ये आ गया आपके लिए कैश फ्लो. आया समझ में? तो ये 75,000. सो 10,500 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, उसी में 75,000 ऐड कर दो, तो ये आ गया 85,500. यहाँ आपको पता है हर साल डेप्रिसिएशन 75,000 ही रहना है. यहाँ रादर ये सब अमाउंट ही आपका सेम रहेगा. नाउ 75,000 इंटू 30%, तो ये आ गया 52,500. तो हर साल आपका ये सेम रहेगा 52,500, 52,500. अब इसी में आप क्या कर दो, 75,000 को ऐड कर दो. सो दिस बिकम्स 1,27,500, 1,27,500, 1,27,500. इस पे आपको मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमारा कितना रहेगा, अब ये देखो 15% के हिसाब से. सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर at the rate 15%. So we straight away go to the present value table, right? So show all the slides. हम straight away वो present value table पे चलते हैं. Yes. तो ये देखिए, ये 15% वाला टेबल हमारे पास है, year 1, 2, 3 and 4. Got it? Right? तो हम ये अमाउंट्स को ले लेते हैं और इसके बेसिस पर कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये आ गया मेरे पास 0.8696. Then I have 0.7561, then I have 0.6575 and I have 0.5718. करेक्ट. तो यही आ जाएगा मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस. सो 85,500 into 0.8696, so 74,350. So this is 74,350, 1,27,500
into 0.7561. So 96,402. 96,402. Then 127,500 into 0.6575. So 83,831. 83,831 and 1,27,500 into 0.5718. 5718 ये हो जाता है आपका 72,904. So this is 72,904. तो बस ये हमारे पास आ गया. अब हम यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू तो वैसे भी जीरो है, कुछ भी हमारे पास नहीं है. तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द एनपीवी. सो एनपीवी में व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इन सब का टोटल. ठीक है, तो 74,350 प्लस 96,402 प्लस 83,831 प्लस 72,904. So this is positive 3,27,487 and present value of cash outflow ये हमने कैलकुलेट किया था 3,17,500. करेक्ट, 3,17,500 और ये आ गया मेरे पास NPV. So we know that the NPV is positive, right? 9,987. Now since the NPV is positive, आपका यहाँ पर क्या रहेगा, accept the proposal to replace the machine. और एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेना कि इन्होंने मशीन को रिप्लेस करने का प्रपोजल आएगा. हाँ यहाँ पर आ गया ना, कंसिडरिंग द प्रपोजल. सो यू कैन राइट दिस. आप बताइए जी, ये क्लियर हुआ? हाँ. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो.